Hi everyone, welcome to my channel. Anyone who's watching this is basically waiting for a new start. And let me tell you, जो भी ये वीडियो देख रहा है, things are gonna start in a very new and fresh manner for you. And I strongly believe that, and I strongly want that to happen for every single one of you, and even for me as well. Today we are gonna do pile readings for next year कि next year आपका कैसे होने वाला है. So very clearly I will be showing you two objects. तो आपको उसमें से कोई भी एक object choose करना है, whatever you relate with the most. And I have two things in front of me. So first pile is this, a sharpener, and second pile is this, an eraser. Okay, take your time to choose कि आप किससे ज़्यादा relate करते हो, and what do you want to choose for your reading for the year 2026. इस reading में मैं cover करने वाली हूँ your career reading, your health reading, your love life, and in general, and along with that we'll also cover your angel reading कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. I hope you have chosen your pile. This is pile number 1 and this is pile number 2. Let's go. If you have not chosen, just pause the video, choose your pile, and then we will start. Okay, let's do pile number 1. We'll do later on pile number 2. Let's do pile number 1. First of all, thank you angels कि उन्होंने हमें मौका दिया that we are doing this and we are actually into this. I'm so excited, I'm so happy to do this. Let's start कि 2026, we will be dividing this year in 3 parts. Basically first half, second half, third half, quarterly उस पे करेंगे हम basically 4 months के हिसाब से, so that we know exactly कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, and we also get a thorough knowledge and understanding कि what exactly is gonna happen. So let's see what have angels brought for us for the pile number 1 for their career. This is pile number 1 for their career. Let's see. For the first half. For the second half. And here we go for the third half. Okay. Very, very beautiful readings for whosoever has chosen the pile 1. First of all, those who are watching this and they have reached here till this, please follow, like, share, subscribe, because that's something which we will do as an energy exchange. And let's just begin with it. जो first part of the year रहेगा, I believe it is gonna be very, very beautiful. A lot of celebrations is what I'm able to see. A lot of results is what I'm able to see. Like basically आपने काम कर लिया सारा, चीज़ें आपने कर ली, एंड अब उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा इन 2026 विद द फर्स्ट 4 months. वेरी क्लियरली जो भी एफर्ट करते जाओगे, जो भी एफर्ट डालते जाओगे, उतने उतने रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे. इफ़ यू फील दैट मैंने एफर्ट इतना डाला नहीं है या मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकती, दैन यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली. बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक विनिंग स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी, बहुत ज़्यादा एक विनिंग अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ वाली एक एनर्जी जो है मुझे दिख रही है वेरी वेरी क्लियरली इन दिस रीडिंग. अलॉन्ग विद दैट बहुत ज़्यादा यू कैन से इन योर वर्क प्लेस, इन योर वर्क एनवायरमेंट, पीपल हु हैव बिजनेसेस, a lot of new collaborations, a lot of new wins, a lot of fears are also there which you are gonna overcome when it comes to your career, when it comes to your finances. बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी ग्रोथ आपके आती हुई दिख रही है, वेर इन यू विल बी इन अ सेलिब्रेशन जोन इन द ऑल द 4 months. मेरे को ऐसे लगता है कि काम किया है आपने, अपने आप को एनालाइज किया, अपने आप को जाना है, इसके बाद आपको जो ग्रोथ है वो मिली है. समवेयर पीपल हु are trying to build themselves, trying to build their empire, trying to build their business, specifically for business people, उनके लिए तो देखो ये मेरे को ऐसा लगता है ये next year is gonna be the year of leadership. Like it's 2026, number 1, it is the year of sun, year of leadership. So बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए कि strategy अभी से ही बनानी शुरू कर दें and just work on it and see
रिजल्ट आपको कैसे नहीं मिलते. इट्स रियली 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 गना हेल्प यू. Now when we go about the second part of the year, next 4 months, which is आपका May to September, आपका कैसा रहेगा. Expect a lot of growth. Expect that you will be attached to something. There is some sort of goal that you will have कि मुझे ये अचीव करना है, अभी तक मैंने ये कर लिया, अब मुझे ये करना है. तो that sort of energy is something that I'm getting from this card. Attachments है, hope है, growth है, बहुत ज़्यादा blessings आ रही है in the year 2026 for pile number 1, whosoever has chosen that. Along with that मुझे ऐसा लगता है कि आसपास ना बहुत ज़्यादा noise होएगी आपके. There is going to be a lot of disturbance around you, but you will be headstrong. You will have that blinders कि मुझे ये करना है तो मुझे यही करना है. You will have your goals, you will have your vision, you will have your answers, which is again a very beautiful feeling, very beautiful energy that I see for you. Along with that, I also feel क्योंकि 17 नंबर है कार्ड का, also denotes Saturn. 1 + 7 is 8 Saturn. तो हो सकता है कुछ कुछ जगह पे आपके काम अटके या फिर लेट हो, डिले हो. नो दैट कि वो डिले टेस्ट कर रहा है, वो डिले इस चीज़ का नहीं है कि वो आपका काम होने नहीं देना चाहते. इट इज़ बेसिकली रिफाइनिंग यू टू डू इवन बेटर फॉर योर सेल्फ. ओके, सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी तक पाइल 2, बट द कार्ड दैट आई एम ब्रिंगिंग राइट नाउ, द कार्ड दैट आई एम गोना ओपन अप राइट नाउ इज गोना मेक्स टोटल सेंस कि मैं क्यों कह रही थी कि काम अटकेंगे. बट क्योंकि वो इसलिए अटकेंगे क्योंकि ग्रोथ आनी है ना. यू विल बी बेसिकली क्रॉसिंग योर साइकिल. यू विल बी ब्रेकिंग योर पैटर्न. जो अभी तक इतनी देर से चले जा रहा, अब टूटेगा वो पैटर्न. इस नए साल में थर्ड पार्ट ऑफ द ईयर विच इज़ द लास्ट 4 months में आपका वो पैटर्न ब्रेक होगा. आप अपने लिए जीतोगे, अपने लिए कमाओगे, अपने लिए काम करोगे. एंड व्हेन दैट हैपन माय फ्रेंड, दैट इज हाउ यू गोना विन इन 2026. पीपल हैव चोजन पाइल 1. मतलब देख के मज़ा आ रहा है. ऐसी चीज़ें हैं लाइक एक होता ना कि यू विल बी डूइंग समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. यू विल बी डूइंग समथिंग like unconventional, out of the box. This is that energy and it is so beautiful, so amazing to see. क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं. ऐसी चीज़ें स्पेसिफिकली यू डूइंग इट इन योर लाइफ, यू डूइंग इट इन योर फैमिली. अपने एक बोल सकते हो कि अपने पूरे टब्बर में शायद किसी ने ऐसी चीज़ें नहीं करी होगी जैसे आप करने वाले हो, जैसे आप अपनी एनर्जी डालने वाले हो इस साल में. वेरी वेरी ब्यूटिफुल. करियर तो भाई इट इज़ गोना मूव अहेड रॉकेट. एक होता ना प्रॉपरली रॉकेट की तरह आगे जाने वाला है, बढ़ने वाला है. सो इट इज़ सो गोना ग्रो. देर आर गोना बी अ लॉट ऑफ इशूज when it comes to you controlling some things in your life and in your career. ठीक है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए अगर चलोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू ग्रो. you will be automatically be able to manifest a lot of growth in your life, a lot of happiness in your life. बस अपनी जो तामसिक चीज़ें हैं या अपने जो तामसिक पैटर्न्स हैं उसको कंट्रोल करना, बाकी ओवरऑल कर लोगे. एंड करियर वाइज तो भाई कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है जो आप मिस करोगे. फॉर पाइल नंबर 1 इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग. आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड टू जस्ट रीड इट फॉर यू. मज़ा आया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ योर लव लाइफ. Pile number 1, before moving ahead with your love life, let's just take a deep breath. Anyone who's nervous, anyone whose love life is not going really well, I can just understand and relate. But I am with you. But let's just see what is coming for you, okay? Pile number 1 की people are watching this, उनकी love life in the year 2026 first half में कैसे होने वाली है. Okay, beautiful energies. ठीक है. First of all, I think
जिन लोगों को इस साल वेट रहेगी ना, शादी करनी है या फिर अपने लिए कुछ करना है, चीज़ें आगे बढ़ानी है अपनी लाइफ में, आई थिंक दिस इज गोना बी योर टाइम, योर एनर्जी, योर सिचुएशन, जहाँ पे आपको ना अपनी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा, जहाँ पे भगवान खुद बोलेगा ले मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे कर, तू कर जो करना है, मैं तेरे साथ हूँ, लाइक so much of divine guidance, so much of pure blissful energy is what I'm sensing for pile number one for their love life. Why? Let me explain. We'll go moment by moment and we will see कि क्या आता है. So for the pile one, for your first half चीज़ें थोड़ी सी disturbing रहेंगी for your love life. वो disturbing क्यों रहेंगी? Because somewhere you will automatically be disturbed yourself, क्योंकि आपका ध्यान कहीं ना करियर स्टेबिलिटी, लाइफ को आगे बढ़ाना है, चीज़ें किस तरीके से करनी है, उस चीज़ पर रहेगा. सो व्हेन यू विल बी फोकस्ड इन दैट, व्हेन योर एनर्जी विल बी फोकस्ड कि मेरे को ये करना है या मुझे इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, तो उस टाइम के ऊपर ना लव लाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाने वाला है. ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अपना ध्यान अगर आप करियर के ऊपर लगा रहे हो तो कंप्लीटली करियर पे मत लगाओ, थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा टाइम आपको शायद अपने लाइफ में या अपने ओवरऑल बोल सकते हो लव लाइफ में भी देना पड़ेगा. दिस इज व्हाट द एनर्जी इज सेइंग. लाइक ऑल्सो समवेयर आई फील किसी तरीके का लैक है या किसी तरीके का कंसर्न्स आपको अपनी लव लाइफ में दिखने वाले हैं इन द फर्स्ट यू नो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में. बट वो कंसर्न्स ऐसे हैं ना जो वर्केबल है, जो डुएबल है, कि ठीक है अगर ये प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई नो आई एम गोना मेक इट हैपन, आई नो कि ये चीज़ वर्केबल है और ये चीज़ सॉर्ट होने वाली है. सो दैट इज व्हाट द एनर्जी इज सेइंग. डरने वाली कोई बात नहीं. ऑल्सो देर विल बी फ्यू पीपल हु विल हैव कंसर्न्स विद मनी व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेशनशिप. या हो सकता है आपके रिश्ते में स्टेटस का फ़र्क हो, या आपके रिश्ते में कोई सोशल कुछ फ़र्क हो, कास्ट का डिफरेंस हो. इफ़ दैट इज़ द केस तो आई थिंक वो भी इस साल काफ़ी हद तक डिफरेंसेस आप रिमूव कर पाओगे. एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग जो फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्ट होगा, बट इवेंचुअली इट विल गो ऑन एंड वो रिमूव हो जाएगा. डू यू सी दिस? This is the card for the second half for pile number one for your love life. Such a beautiful energy, divine blessings. कई लोगों की तो शादियां भी हो रही हैं in the second half, which is by I think September तक हो जानी चाहिए. September October. बहुत ही ब्यूटीफुल है. डिवाइन खुद आके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. आई ऑल्सो फील कि जुपिटर की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सॉलिड, बहुत ब्यूटीफुल. So it is also something which is gonna be with you, which is gonna stay with you. So कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए. गिव अप मत करना अपने रिश्ते के ऊपर. थोड़ा सा वेट करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेंगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगी. एंड यू विल सी हाउ मैजिकल योर रिलेशनशिप कैन गेट, हाउ मैजिकल योर लाइफ कैन एक्चुअली गेट. आई एम सीइंग ऑल्सो 13-13. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिलीज का प्रॉब्लम आएगा रिश्ते में, कि फैमिलीज नहीं मान रही थी या फिर कोई स्टेटस को लेकर इशू आया, कास्ट को लेकर इशू आया, क्योंकि 4 है, राहु है, अनकन्वेंशनल है, तो दोनों में डिफरेंसेस होंगे. बट वो डिवाइन पूरे करेगा. डिवाइन इज गोना हेल्प यू, यूनिवर्स इज गोना हेल्प यू, जस्ट स्टे ग्रेटफुल. सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा होने वाला है आपका सेकेंड हाफ, क्योंकि काफ़ी हद तक ब्लेसिंग्स और काफ़ी हद तक आप बोल सकते हो कि आपको अग्रीमेंट्स, फैमिली अग्रीमेंट्स एंड फैमिली का यस मिल जाएगा, उनके आंसर्स अच्छे तरह से मिल जाएंगे. फॉर द थर्ड हाफ कन्फ्यूजन्स हैं, बट फैमिली की प्रेजेंस है, फैमिली की गाइडेंस है, फैमिली की सेलिब्रेशन है, तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा लास्ट ऑफ द ईयर. कहीं ना कहीं आई थिंक यू विल ऑल्सो बी ट्रैवलिंग विद योर लव्ड वन, यू विल ऑल्सो बी गोइंग अहेड विद योर लव्ड वन. एंड आई ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं फॉर फ्यू पीपल्स, अगर आप सिंगल हो तो आई थिंक यू विल बी कन्फ्यूज्ड, यू विल बी इन दैट एनर्जी कि यार क्या करूँ. आपकी लाइफ में ऑप्शंस आते रहेंगे बट यू विल बी कन्फ्यूज. सो जब कन्फ्यूजन आए उस टाइम पे टेक हेल्प, टेक टेक आई वुड से कि कोई अपने दोस्त की, कोई फैमिली मेम्बर की सलाह लो, एज दैट इज समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टू ग्रो आउट ऑफ दिस, टू ग्रो इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में. एंड थर्ड हाफ में
थर्ड हाफ ऑफ द ईयर में मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अच्छी, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी बोल सकते हो कि आने वाली है, क्योंकि सब तरीके से वंडरफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल कार्ड्स दिख रहे हैं, एंड थिंग्स आर जस्ट गोना ओवरऑल मेक सेंस, थिंग्स आर जस्ट गोना मेक सेंस इन अ वे कि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आप सोचोगे कि यार हम इस चीज़ पे ऐसे कर रहे थे, हम इस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जबकि सब कुछ सही है. So things are gonna be beautiful by the end of the year. Yes, there will be some confusion, some problems, some mindset differences which are gonna come in there, but वो चीज़ automatically with time निकल जाएगी. The guidance for your love life will be कि चीज़ों को वक्त दो, वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, is gonna be the guidance. बस patience नहीं होनी है, ठीक है? Let's move on to third thing, that is the health and general health and overall reading. ठीक है जी, फाइल नंबर 1 के लिए हेल्थ एंड ओवरऑल रीडिंग क्या निकल के आ रही है. ओके, लेट्स जस्ट सी. सेकेंड हाफ में क्या है. थर्ड हाफ में मेक सेंस. ठीक है. सो आई थिंक फॉर द पाइल नंबर 1 हेल्थ और जनरल रीडिंग की अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से सामने निकल के आती है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर तो देखो बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं रहे हो फ्रॉम द लास्ट ईयर इटसेल्फ. तो जब हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, 1 साल से ऊपर हो गया, आप अपने हेल्थ के बारे में सोच नहीं रहे हो, आप इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो कि मुझे क्या खाना है, क्या करना है, रूटीन नहीं है लाइफ में, या फिर जस्ट एक बोल सकते हो कि इग्नोरेंस में चल रहे हो कि कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट नाउ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर. आपकी बॉडी भी जवाब देगी आपको, आपकी बॉडी आपको सफ़र कराएगी. कोई ऐसी अंडरलाइंग चीज़ें, कोई ऐसे अंडरलाइंग इश्यूज आपकी हेल्थ में हैं जो आपको पता है कि है, बट आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो. दिस इज़ हाउ इट इज़ गोना कम आउट इन टर्म्स ऑफ योर स्लीप पैटर्न. स्लीप इश्यूज बहुत लोगों को हो सकते हैं, पीपल हु हैव चूजन पाइल 1. Second number, I also feel that some sort of uh, memory issues, some sort of disorders when it comes to your mind, when it comes to your brain, कि चीज़ें भूल जाना या पुरानी चीज़ों में रहना, पुरानी चीज़ों को याद करके उसी चीज़ में रुकना, बेसिकली और माइंड रिलेटेड, मर्करी रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि स्पेसिफिकली वो लोग जो देख रहे हैं जिनका मर्करी अफ्लिक्टेड है ना, उनको स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में देखना पड़ेगा कि इसका मैं क्या कर सकती हूँ या क्या करना चाहिए. सो आई थिंक दैट्स समथिंग यू शुड सी एंड गेट योर टेस्ट डन बिफोर इट हैपन्स, क्योंकि इतना है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपके हेल्थ में, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू योर माइंड. अगर किसी को माइग्रेन है तो वो ज़्यादा एलिवेट होगा, एंड अगर कोई बंदा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो मतलब इफ़ यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ एनीबडी एल्स, तो ऑब्वियसली आप लोगों की लव लाइफ तो इसलिए शायद ख़राब दिख रही थी इन द फर्स्ट हाफ. For the second half, I feel you will be working on yourself. You will start working on yourself. You will just रिफाइन योर सेल्फ, कि आपको पता लग जाएगा अच्छा मेरे को यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे काम करना है, बेसिकली बंदा बन जाओगे. तो अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट्स लेके आना शुरू करोगे, एंड एट द सेम टाइम अपनी अपने आप को स्टेबल करना शुरू करोगे. लाइक पीपल हु आर इन देयर लेट 20s, इन देयर 30s, specifically those people, they will start to understand the value of their health, the value of their heart, the value of their mind, and value that their body carries. क्योंकि देखो 20s तक तो, मिड 20s तक तो हम इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि ठीक है चल रही है, चली रही है बॉडी, कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कुछ भी करा, दैट डज नॉट मैटर. But after this thing, I think you guys will be working on yourself. You guys will be working on how things are going to improve, how you will improve, how things are just going to make up. So I think ये चीज़ बहुत important होने वाले, wherein you guys will be actually working on yourself, and it's just so beautiful to see people working on themselves. For the third thing, very very important, थर्ड हाफ में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा
सरेंडर वाला नेचर आ जाएगा, बिकॉज जैसे सेकेंड हाफ में आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, थर्ड हाफ तक आते आते वो एक ऑटो पायलट जोन में चीज़ें चल लेंगी, कि जैसे अगर रूटीन बन गया मेरा, मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं सुबह उठ के जिम जा रही हूँ एंड मैं सुबह ये काम कर रही हूँ, तो वो एक आपका रूटीन सेट हो जाएगा एंड वो आप एक चीज़ ऐसी है जो आप करनी शुरू कर दोगे, ठीक है. ऑल्सो पीपल, for the pile number one, you guys will face some sort of eyesight issue. कुछ eyesight related issues, कुछ eyes related problem, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जैसे स्पेसिफिकली मायोपिया सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे हमें दूर का नहीं दिखता है, हमें दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, समथिंग रिलेटेड टू दैट सॉर्ट. तो अगर कुछ ऐसा है या अगर आप कुछ ऐसा देखते हो, देन इट इज़ हाईली हाईली सजेस्टेड दैट आप उस चीज़ के ऊपर अपना काम करो एंड यू सॉर्ट ऑफ वर्क एंड फोकस ऑन दैट, राइट. एंड इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि स्पेसिफिकली फॉर पाइल नंबर वन, ग्राउंडिंग अपना करते रहो. ओवरऑल जो चीज़ें मैं देख के बता रही हूँ, ग्राउंडिंग करो, रात को मेडिटेशन करो. अगर किसी को सोने में दिक्कत आ रही है फ्रॉम 2025 दिसंबर से ही, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रह रहे हो, इट इज़ अ हाई कॉल फॉर यू दैट यू स्टार्ट ग्राउंडिंग योर सेल्फ. बेसिकली ना, जो ग्राउंड नहीं करते अपने आप को, उनके ना यहाँ पे ऐसे करके ना, जैसे हम पंजाबी में त्यूड़ी बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली उनके वैसे होना शुरू हो जाता है, विच इज़ अ स्टेट जहाँ पे आप हमेशा एंग्री रहते हो, यू आर ऑलवेज अपसेट, यू आर ऑलवेज अनहैप्पी. सो इफ दैट इज़ द स्टेट फॉर यू, like start grounding yourself, start fixing your posture, start fixing yourself when it comes to your health. Overall it will be good, but these are the things which you have to work on. नाउ पाइल नंबर वन के लिए हम करेंगे गाइडेंस, कि उनकी क्या गाइडेंस आती है. ठीक है जी. एंजल्स मुझे गाइडेंस दे दो. मैं एक ही कार्ड निकालूंगी गाइडेंस का, कि कौन क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आएगी. Angels, give me one card for pile number one, and please bless the ones who are watching the video. Okay. Wow. See, I think because we are doing a yearly reading, the cards are also saying a year from now, abundance. So basically, universe and your angels are telling you that your life is gonna change. You are gonna attract abundance. And see, let go of anything which is holding you back, let go of anything which is basically disturbing your peace. And अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को अगर रूटीन में लाना शुरू करोगे, तो यू विल सी हाउ magical your life will become. And I think this is what we have for pile number one, and I'm so happy because I'm so sure कि अच्छी इतनी beautiful reading होने वाली है, and I'm so happy. Before starting pile number one, as an intuitive thought, आई फील कि आप लोगों को अपनी लाइफ में से बहुत चीज़ें ऐसी हैं दैट आपको पता है कि मुझे ये चीज़ निकालनी है अपनी लाइफ में से, बट आप उस चीज़ को निकाल नहीं पाते हो. तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि ये साल ख़त्म होते होते अपनी लाइफ में टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक इश्यूज, टॉक्सिक सिचुएशंस को छोड़ के जाओ एंड फोकस ऑन योर लाइफ अहेड. लेट्स सी फॉर पाइल नंबर टू. लेट मी हैव सम वाटर. Okay. लेट्स डू पाइल नंबर टू. पाइल नंबर टू के लिए हम देखेंगे कि उनका सेम तरीके से पहले वी विल सी करियर, लव लाइफ, हेल्थ, एंड देन विल मूव ऑन टू एंजल गाइडेंस. ठीक है. पाइल नंबर वन का, पाइल नंबर टू का सॉरी, करियर वाइज फर्स्ट कैसा होने वाला है, फर्स्ट हाफ. तो फर्स्ट हाफ, ओके. ठीक है. Pile number two. Whosoever who has chosen pile number two, I would highly recommend you that sit down, have a sip of your water, and let's just move into it. First thing is very very clear that देखो, people who are starting with their careers,
उनकी लाइफ में कंफ्यूजन आएगी, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत ज़्यादा माइंड ऐसा कंफ्यूज रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड विल वॉन्डर कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे लिए ये ऑप्शन भी अच्छा है, ये ऑप्शन भी अच्छा है, ये ऑप्शन भी अच्छा है। बट फोकसिंग ऑन वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 2 इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आने वाली है। बट द मोर यू फोकस, द मोर यू पुट योर एनर्जी इन द राइट थिंग, द मोर यू focus in the right direction, the more help you're gonna get. Confusion दिख रही है in for the pile number 2 in the first half of the year when it comes to their career. Even though आप जॉब कर रहे हो, even though आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस सिर्फ एक ही माइंड में कर रहे हो। आपको ये नहीं पता कि मैं एक्सपैंड कैसे करूँगा, आपको ये नहीं पता कि हाउ टू अनलॉक माई ट्रू पोटेंशियल। तो उसके लिए क्लैरिटी ज़रूरी है, जो आपके पास नहीं है। माइंड फॉगी रहता है, माइंड कभी कहता है मैं ये कर लेता हूँ तो जल्दी मिल जाएगा। मे बी यू आर लुकिंग आउट फॉर सम सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट, मे बी यू आर लुकिंग आउट फॉर सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी, मे बी यू आर लुकिंग आउट फॉर सम हेल्प जो शायद नहीं मिलने वाली है। तो rather than looking out for that, it is very important that you start looking out for uh, क्लैरिटी विद इन योर सेल्फ। सिट विद योर सेल्फ एंड जस्ट सी कि मुझे क्या करना है। ट्राई एक चीज़ करो, उस चीज़ को पूरा करो, नहीं होता है देन मूव टू अदर थिंग। क्योंकि यहाँ पे देखो, दिस पर्सन इज एक्चुअली कंफ्यूज कि मुझे करना क्या है, ये चीज़ करूँ वो चीज़ करूँ, बट बाय द एंड वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। एंड सिमिलरली फॉर यू गाइज, फॉर द पाइल नंबर 2, इट इज़ वेरी क्लियर कि यू वुड वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ सेम रीजन। सो फोकस इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट हाफ में मुझे फोकस नहीं दिख रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ पाइल नंबर 2 थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे फील होगा कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरे साथ ही चीज़ें खराब क्यों होती है। पीपल फ्रॉम पाइल नंबर 2, स्पेसिफिकली पीपल हु आर इन जॉब्स, you guys need to be very very careful with the type of work and the type of quality of work that you serve, because quality आपकी गिरती हुई दिख रही है काम की। क्योंकि आपका मन ही नहीं लगेगा काम में। अगर जब मन नहीं लगेगा और क्वालिटी गिरेगी तो यू नो कि वो खतरा आपकी जॉब के ऊपर आएगा। सो बी केयरफुल विद दैट। एंड I would suggest for pile number 2, have multiple options in hand. In when it comes to your income source, it means ये नहीं कह रही हूँ कि एक टाइम पे मल्टीपल जॉब्स करो, बट एटलीस्ट हैव अ प्लान कि मुझे ये करना है, या फिर हैव, इफ यू आर डूइंग सम जॉब, डू समथिंग पार्ट टाइम अलोंग विद दैट। ठीक है, सो दैट यू डोंट हैव वन इनकम सोर्स, बिकॉज आई डू फील सम थिंग्स collapsing. It can be your job, it can be your business failing, it can be इट कैन बी योर, ज़रूरी नहीं है कोई फिजिकल चीज़ ही कोलैप्स हो, ज़रूरी नहीं है कि काम खराब हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा था कि ये चीज़ तो चलेगी, या होता है ना कई बार, ये आइडिया तो चलने वाला था, ये कैसे नहीं चला, राइट? सो व्हेन दैट हैपेंस इट इज़ रियली पेनफुल। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज कैरी अ प्लान बी विद योरसेल्फ, एंड एट द सेम टाइम romanticize your work, romanticize what you do, fall in love with what you do. When you will fall in love with what you do, you will get the results, and you will get the answers, you will get the clarity, and you will get uh, anything that you're looking out for. Like, आपका काम आपके लिए खेल होना चाहिए, और दूसरे के लिए लगना चाहिए कि यार ये तो काम कर रही है, ये तो बंदा ही ऐसा है, ये तो बहुत बिजी है। बट दैट वर्क शुड बी जस्ट प्ले फॉर यू, दैट शुड बी लव फॉर यू, दैट शुड बी डिवोशन फॉर यू। तो अपना काम में ना, लाइक आई टोल्ड यू कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, एंड यू नीड टू बेसिकली पुट इन द राइट एनर्जी एट योर वर्क, राइट? For the part 3, I think there is a lot of grieving, there is a lot of letting go and releasing that pile number 2 will go. And मुझे ऐसा लगता है that कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ना इतना ज़्यादा लो समझ लिया है, यू हैव फेल्ट योर सेल्फ एज सो कि मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हूँ, मैं इतना ज़्यादा हर्ट हूँ, मैं कैसे करूँगा, कि यू हैव फॉरगॉटन दैट universe has given energy centers in our body which we can fix, which we can energize, which we can basically do anything with, right? So career wise, pile number 2, you guys will have to let go of a lot of bad things in your life to attract good things. बेसिकली अगर आपको एक चीज़ पता लग गई कि मेरे लिए करियर वाइज ये चीज़ काम नहीं कर रही है,
बट मैं फिर भी वही करे जा रही हूँ या मैं वही करे जा रहा हूँ, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स. इफ यू वांट गुड रिजल्ट्स, यू नीड टू try and test and try one another thing and then move ahead. एक चीज ट्राई करी, नहीं वर्कआउट करी, कुछ टाइम और ट्राई की, नहीं वर्कआउट करी, लीव इट, मूव अहेड, मूव ऑन, डू गुड थिंग्स. क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपके लिए भी सूरज बैठा है, आपके लिए भी पावर हाउस ऑफ एनर्जी बैठा है ना, आपके लिए भी ग्रोथ बैठी है. सो डोंट फॉरगेट दैट, बिकॉज ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग लाइक यार चीज़ें तो अच्छी ही हैं, चीज़ें खराब नहीं है आपके लिए. बट वो चीज़, एक ही चीज़ के ऊपर बैठ के रोते रहना है और एक ही चीज़ के ऊपर बैठ के ये फील करना कि मैं विक्टिम हूँ, मैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो देन डोंट एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू कम योर वे. फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 2, आपके करियर के लिए एक सजेशन ज़रूर दूंगी, दैट हैव क्लैरिटी टाइम टू टाइम कि क्या करना है क्या नहीं करना है. चाहे किसी की हेल्प लो, चाहे किसी से बात करो, नहीं तो रीडिंग करवाओ, कुछ करो, बट हैव सम क्लैरिटी विद योर करियर. सेकेंडली, लेट गो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस साल. इस साल का मोटो रहेगा आपका कि आपको लेट गो करना ही पड़ेगा टू एक्चुअली अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ, राइट. Let's move on with your love life. Pile number 2. Pile number 2 का love life कैसा होगा? First half, wait. Pile number 2, you guys have a lot of limiting beliefs within yourself, so release that. I think जो releasing की बात है, आपका career भी इसीलिए नहीं चल रहा, because you are having a lot of limiting beliefs, doubts within yourself. Let's see फाइल नंबर 2 का सेकेंड हाफ कैसा रहेगा. लव लाइफ में तो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं. वाओ. Females who are watching this video, I believe you guys are gonna turn in your most feminine energy that you have ever been. क्योंकि ये एनर्जी, ये पॉजिटिविटी और ये ग्रोथ कहीं ना कहीं आपने लर्न करी है अपने पास्ट लेसन से, पास्ट रिलेशनशिप से, या फिर पास्ट अपने आसपास के लोगों को देख के. फॉर द फर्स्ट हाफ, मतलब आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अ लॉट अबाउट दिस. यू विल बी अट्रैक्टिंग और यू विल बी बिकमिंग योर सोलमेट. फर्स्ट थिंग इज कि जो सिंगल है वो खुद के लिए खुद का सोलमेट बनेंगे, एंड यू विल बी ऑन सर्च फॉर लुकिंग आउट फॉर समबडी न्यू, विच यू विल गेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. फॉर द फर्स्ट हाफ, पीपल हैव चोजन पाइल 2 नो दिस, दैट लव इज गन बी द मेन थीम ऑफ योर ईयर, जहाँ पे बहुत प्यार होने वाला है, बहुत ज़्यादा. जिनके रिश्ते खराब भी हुए हैं, जिनके रिश्ते नो कांटेक्ट में गए हैं, प्रॉब्लम आई है लास्ट ईयर, दिस ईयर इज गोना बी सो 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 मैजिकल फॉर यू दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन. फर्स्ट हाफ में आई फील you will be in the most honeymoon phase of your life when it comes to pile number 2. You will be meeting some person, you will be getting married, you will be basically be in that zone जहाँ पे you will you would have found your soulmate, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश एनर्जी में रहोगे. Secondly, there is Empress in the second half of your love life, which is very very clear that you will be in the most feminine era of your life. Like I told you, specifically for female, even for men also, you guys will be in the most feminine era of your life, जहाँ जहाँ तक आप आज तक नहीं पहुँचे हो. इट इज़ प्रॉबेबली बिकॉज आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर करेगा इन द सेकेंड हाफ, या फिर इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट यू वॉन्ट टू attract someone in your life, and that is how you're becoming. For females तो देखो, it is very important to be in their feminine energy, but for men also it is very important to be in their feminine energy, but in a balanced way. कि in a balanced way कि आपकी masculine energy down ना हो, आपकी masculine energy low ना हो, because more balanced you are, more growth you will have in your life. So love life for the second half, first half is amazing and makes so much sense कि growth ही है life में, abundance है. You will be just laying back and focusing on yourself, and सब सेल्फ केयर जोन में इजी गोइंग चल रहा है, एंड इट इज एक्चुअली द एनर्जी विच एनीबडी वुड वांट इन देयर लाइफ, एंड इट इज सो 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 ब्यूटिफुल टू हैव दैट. टॉकिंग अबाउट क्वीन ऑफ कप्स,
थर्ड हाफ में आ रहा है, विच मीन्स दैट ladies, females who are single, you guys will be specifically in that zone of your life जहाँ पे self care is the most important thing in your life, जहाँ पे you are working on yourself, you are putting in energy, you are most feminine, you are caring, you are loving, you're nurturing, right? And there, for people in relationships, you guys will have such beautiful relationships in your life. एवरीथिंग इज मेकिंग सो मच सेंस कि इससे ब्यूटिफुल लव ड्रॉ शायद ही मैंने देखा हो. एंड द कमिंग ईयर आई फील ऑल्सो, आई फील दैट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी बिकॉज पीपल हु आर सिंगल, उनके लिए कहीं ना कहीं, बिकॉज यू विल बी इन दैट रेस टू अट्रैक्ट लव फॉर योर लाइफ, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि खुद के ऊपर काम करना, बिकॉज नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड द वर्ड और नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्किंग ऑन themselves. When you do not understand the meaning of working on yourself, it gets a little difficult. So work on yourself is a motto for the single people, specifically for the people who are chosen pile number 2. And you will be getting the your person, but उसके लिए खुद से प्यार करो. When you shift your focus from the other person to yourself, they also shift their focus on you, and similarly universe also shift their focus on you. So do that. लव ड्रॉ तो बहुत ही अच्छा था, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द लव एनर्जी ना, आपका करियर भी आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मिलेगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील होगा. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द हेल्थ इन जनरल. फाइल नंबर 2 के लिए फॉर द फर्स्ट हाफ इनका कैसा रहने वाला है. फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ देखो, ओवरऑल आई बिलीव इट इज़ गोना बी वेरी वेरी गुड. स्पेसिफिकली पीपल जो लोग धार्मिक है ना ऑलरेडी, those people will be focusing on a lot of donations, on a lot of helping other people, and specifically those who are not also, I would highly suggest कि आप लोग लोगों की हेल्प करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा. It will be really really helpful for you to work for the society, for other people, uh, to basically do some sort of social service, to basically get rid of either the health issues or to nullify that health issues wala effect, because first half looks really really good and will be more focused on giving others. ठीक है, आप दूसरों को देना पसंद करोगे, दूसरों की हेल्प करना, मदद करना आपके लिए आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा देन doing things for yourself or doing things for your family. So it is a very very good thing, but make sure that you do it in a balanced way, and इससे आपका कार्मिक साइकिल, कार्मिक चक्र भी बैलेंस रहेगा. Talking about second half में expect some sort of mental pressure building up in your life. Mental pressure will build up because of some sort of financial losses, or maybe because of some sort of फाइनेंशियल हैवीनेस, बीइंग इन लैक मेंटालिटी. क्योंकि जब हम कम 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 चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि लाइफ में कमी है कमी है कमी है, तो वो फिर ग्रोथ के बारे में आप नहीं सोच पाओगे. बट जो हेल्थ इश्यूज आप अट्रैक्ट करोगे, इट कैन बी रिलेटेड टू योर लेग्स, इट कैन बी रिलेटेड टू योर बैक, स्पेसिफिकली बैक रिलेटेड इश्यूज, स्पेसिफिकली नेक रिलेटेड इश्यूज. नेक बेसिकली अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक. every back matlab every part of your back has some sort of issues attached to it. Specifically lower back अगर होती है पेन, आज भी होते हैं, अदरवाइज होती है, notice that it is also happening energetically, क्योंकि आपके ऊपर burden है, या आपको ऐसा लगता है कि I do not have any sort of support. So when you feel this, when you even manifest it as health issues, take help from other people, talk to someone and get that burden off your back, because ये चीज़ ना एनर्जेटिकली ट्रांसफर होके मैनिफेस्ट हुई आपकी लाइफ में. इट इज़ नॉट समथिंग जो आपकी लाइफ में शुरू से था. ठीक है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं. उसको ठीक करने के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. टॉकिंग अबाउट द थर्ड part of your health and general reading, it shows that you will be on the move, you will be working on yourself, you will be making routines, doing things, sticking to the things. Specifically people who will make routines but not stick to it is not going to be for pile number 2. Pile number 2 will stick to the things, but वो चीज़ आएगी शायद लेट, बट वो आएगी.
एंड जब वो आएगी वो टिकेगी, वो काम करेगी, एंड इट इज समथिंग विच इज गोना वर्क फॉर यू एज वेल. सो मेक श्योर दैट यू आर इन दैट एनर्जी जहाँ पे आप अपने लिए काम कर रहे हो, जहाँ पे आप रूटीन्स बना रहे हो एंड यू आर फॉलोइंग इट. एडवेंचर कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रिज्यूमिनेट करने के लिए कर रहे हो. दैट इज व्हाट यू डिजर्व एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू. So overall health and all is also looking really well. Now for the final part, let's see what is the guidance coming for pile number 2. Angels, what is the guidance coming for pile number 2? Just give me a clear answer. What is coming for pile number 2? Angels, please help me with this. Please help me with this. What is... Okay. Pile number 2 के लिए कोई angel guidance दे दीजिए. Meditation brings answer. Like I told you, grounding is really important for you, and knowing more about yourself is also very important. I'm also getting, let's just do one more card. Okay, listen to your intuition and look for a sign. Another very important thing, first thing, I think the angels are clearly saying that whatever you are into, whatever you're doing, meditation will help you find your answers. And secondly, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है लाइफ में, क्या करना है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो अपनी गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करें. एंड एट द सेम टाइम लुक फॉर अ साइन, ask for help from universe, because universe is listening to you. If you are not listening to the universe, but universe is actually listening to you, and universe actually wants to help you as well. So universe से बात करो, उनसे help लो, उनसे मदद मांगो उस हिसाब से, because universe is anyway gonna help you. It's anyway gonna give you a lot of benefit, a lot of growth, and a lot of happiness. So look for a sign. This is what I have for 2026. No sugarcoating, very clear reading. For anyone who wants to know more, please read the description box. If you want to connect for a reading, read the description box. I have mentioned everything there. And please subscribe to the channel, because I have made this video as a channelized message, and I really hope that it reaches to the maximum of you guys. Subscribe to the channel and like and comment, because I will read your comments and I will help you out if you're stuck somewhere. And if you want to connect on Instagram, I will also mention my Instagram channel in the comment below. Thank you.